Hello aspirants, I am Ritesh Shukla and this is the analysis of UPSC GS paper 3. This paper was conducted on the 8th of 9th of Jan on just yesterday itself. So I will be discussing those questions and I will be giving you a little bit of hint answers. Also, I will be telling you from what sections all these questions were asked and what was the pattern of the question, because this time the GS paper question are not really very tough as you would have expected by after seeing the essay paper. So GS3 paper is quite not a very hard one, but it's not also easy for the freshers. But definitely, if there are veterans who are going to sit, the aspirants who have appeared for more than 4 to 5 years, they would be seeing this paper as really good. So I would be saying that when I'm analyzing the questions, I would want you to just understand that there are simple questions, so answer should be in a simple format too. So that is what I'm trying to do with this analysis of the GS3 paper. So I'll be starting from here. This is the, let me start with the pen here. Okay, so this is the subject wise deconstruction that has been done by me. So I'll be just deconstructing that how many numbers of questions have been asked from a particular question, particular section. From Indian economy, there are around 4 questions, and these are not really very tough questions, because if you have solved previous questions, definitely you are going to do all these questions and you can fetch really very good marks. All right. So then again, from agriculture, there are 4 questions. From environment and disaster management, around 5 questions are there. From internal security, there are around 4 questions. And from science and technology, there is only 3 questions. So you can see that environment and disaster has again gained more number of questions as far as in comparison to the Indian economy or agriculture. All right. So though all the sections, all the fields have been touched in the GS3, this is the vast part of the UPSC General Studies paper, but one thing which you can see here is number of questions are quite well in ratio with each other. All right, कोई ना बहुत ज़्यादा है ना कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है. तो this is the deconstruction of the question paper and the number of questions that were asked in a section format. So I will be continuing from here. Again, जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका कितना बड़ा रोल है, तो वो आपको इस क्वेश्चन पेपर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ रिलेटेड उसमें पूछे गए हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिल जाएगा. ऑलराइट. फिर क्या है इसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि कभी कभी ऐसा होता था कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते थे वो one or the other way was touching the current affairs, but currently the static portion has been asked and you can just use it. You can get help from the previous question paper of the UPSC of the mains exam for the GS3. all right. फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जो भी कंटेम्प्रेरी इशू अभी चल रहे हैं उससे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उसमें भी अभी आप लास्ट ईयर या फिर इस ईयर भी, क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप रहा है, तो इसको कई बार यूपीएससी ने इवन लास्ट ईयर उसके पहले भी इसको जो है नेग्लेक्ट किया था. ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, वो भी जो है वायरस एंटीवायरस से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे. और अभी जो कंटेम्प्रेरी इशू है, यानी कि कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन से कैसे हमारी जो है इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो दोज आर द कंटेम्प्रेरी इशू दैट हैज बीन डिस्कस्ड, दैट हैज बीन टेकन अप बाय द यूपीएससी. And if you are a little bit aware about the situation, current situation, you will definitely be able to answer this. All right. So I'll be taking up the questions from here. The first question is, explain the difference between computing methodology of India's gross domestic product before the year 2015 and after year 2015. तो अब 2015 के पहले जो computing methodology थी वो 2000 I'm really sorry about that. 2004-5 के बेसिस पे हुआ करती थी, जबकि 2015 के बाद 2010-11 को बेस मान लिया गया.
ठीक है। इसके साथ साथ जो एक और चेंज हुआ था वो है चेंज इन डेटाबेस, और ये जो डेटाबेस नया बनाया गया था उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको ज़्यादातर इंक्लूड कर लिया गया, तो ये डेटाबेस भी इंक्रीज कर गया और जो बेस ईयर था हमारा जीडीपी कैलकुलेशन का वो भी जो है उसको चेंज कर दिया गया। तो ये जो बेसिक चेंजेस हैं उसके बारे में हमको इसमें बताना है। एंड ऑल्सो द वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लेन इट बिकॉज इसमें एम्पल कंटेंट है। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन the earlier base the earlier method of computing GDP by stating the base year, the earlier base year, और उसके बाद जो है आप जो recent base year यूज किया गया उसके बारे में बता के डेटाबेस जो चेंज हुआ है वो बता सकते हैं, और then your answer will be complete from there. All right. So second question is distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the components of both these budgets. So ये भी जो है काफी straight question है। कैपिटल बजट के बारे में आप जानते होंगे, रेवेन्यू बजट के बारे में। तो कैपिटल बजट जो है कैसे गवर्नमेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, रेवेन्यू बजट कैसे जो है ऑर्गेनाइज करती है। रेवेन्यू बजट उस पोर्शन को ही बोलते हैं जब रेवेन्यू से रेवेन्यू रिसिप्ट से जो भी जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो भी इनकम होती है उसको जो है किस प्रकार से एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं उसको रेवेन्यू बजट बताया जाता है। कैपिटल बजट जो ओवरऑल जो अमाउंट गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए रखती है और उसके साथ साथ उसमें जो है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट करने के जो भी तरीके होते हैं उसको जो एक्सप्लेन करती है वो कैपिटल बजट है। तो ओवरऑल कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, दीज आर स्ट्रेट क्वेश्चंस और इसको जो है कोई बहुत ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं किया गया, तो यू कैन जस्ट इजीली present it right there. All right. So how did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? ये भी इंडियन इकोनॉमी से ही है। अब लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, 2015 में ही लैंड रिफॉर्म्स का एक नया बिल लाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो रेलवे ट्रैक्स होंगे, जो नई रेलवे ट्रैक्स होंगे उसके आसपास के 1 किलोमीटर तक जो एरिया है उसको गवर्नमेंट जो है अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन ये बिल जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनके कंडीशन को कैसे सही करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली में जो लैंड रिफॉर्म है उसमें जो रिसेंट फार्म बिल है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि फार्म बिल भी अभी उसको खत्म कर दिया गया है। लैंड रिफॉर्म्स उस सिचुएशन में जहां पर जो एग्जैक्ट सर्कल रेट है किसी लैंड की उसको अगर गवर्नमेंट सर्कल रेट के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स या 5 टाइम्स अगर किसी फार्मर को अगर दे देती है देन इट माइट बी लिटिल बिट हेल्पफुल टू द फार्मर। लेकिन अगर नहीं दे पाती और वो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग जो है कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जो है काफी कम पैसे में ले जाता है देन इट इज अ ड्रॉबैक। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स के बारे में छोटे छोटे लैंड रिफॉर्म्स जो रीजनल एरियाज में हुए हैं जैसे कि केरला में है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स है, तो उसके बारे में छोटा छोटा आप पोर्शन यहाँ पर बताकर और फिर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है। Now, how and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis? अब जो हमने अभी मेंस 120 प्लस डिस्कशन किया था उसमें मैंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन माइक्रो इरिगेशन पे ही किया है कि माइक्रो इरिगेशन आखिरकार है क्या, वो कैसे जो है हेल्प करता है, और जो भी आंसर उसमें प्रेजेंट किया गया दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई विल बी पुटिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो इसका आखिरकार क्या है कि हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प। माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी की खपत होती है वो कम होती है और जो पानी जगह जगह पर टाइम टू टाइम जो है थोड़ी स्पेस की वजह से जो फैलता है वो जो बल्क पानी नहीं जाता बल्कि हल्की बौछारें पड़ती हैं जमीन पे, सॉइल पे। तो सॉइल जितना भी उनको ऑब्जर्व करना, सॉइल को जितना भी ऑब्जर्व करना होता है वो उतना ही ऑब्जर्व करते हैं और उससे न्यूट्रिशन भी उतना ही लेते हैं। ज्यादा पानी होने की वजह से पानी जो है अननेसेसरी ऑब्जॉर्ब हो जाता है और न्यूट्रिशन तो अपना सॉइल को जितना लेना है उतना ही लेते हैं। ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में जब पानी की हमारे यहाँ कमी भी है और हमें साथ ही साथ इरिगेशन करने में सहायता भी चाहिए। तो इसलिए माइक्रो इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड इज कंसर्न। ठीक है। तो इसको भी काफी अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली जो है खरीदा गया था, तो इसके बारे में अब जो है करंट अफेयर्स में
काफ़ी सारे न्यूज़ जो है क्या कहते हैं टाइम टू टाइम इसमें दिया गया था, और उसमें बताया भी गया था कि इसकी वजह से कैसे कंट्रीज इंडिया और यूएस के बीच में जो है डिफरेंसेस हो गए थे। तो you can just explain a little bit from all the current affairs portions about the S-400 air defense system. All right. अब फिर explain the purpose of Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow, November 2021. What was this idea first loaded in the international? When was this idea first loaded in the International Solar Alliance? अब क्या हुआ था कि ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, इसका ये कहने का मतलब है कि जो भी सौर ऊर्जा से चीजें जो बन रही हैं उस एरिया में ज्यादातर ग्रीन हाउस जो भी एमिशंस होते हैं, जो भी ग्रीन गैसेस होती हैं, उसको काफी ज्यादा तौर पर रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके लिए जितने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कंट्रीज हैं जो कि ऐसा अलायंस बुलाने के बाद ज्यादातर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ये हेल्प मिल सकता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को और भी कंट्रीज से जाके शेयर करें, और जो वो शेयर करते हैं तो उससे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैकेनिज्म डेवलप होगा जो कि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प द ग्रीन इनिशिएटिव। दैट इज द ओवरऑल पॉइंट। अब इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं, बट यू कैन लुक इट थ्रू। ऑलराइट, now about describe the key points of the revised global air quality guidelines recently released by WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes in India's national clean air program are required to achieve these revised standards? अब जो ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में है, इसका भी रिलेशन एनवायरनमेंट से है। अब आपने टाइम टू टाइम न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी जो है ख़राब हो जाती है, उसमें जो है काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। पर्टिकुलर मैटर में जो है आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, पर्टिकुलर मैटर 10 में काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन है वो WHO द्वारा रिलीज किया गया था कि आखिरकार जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही है, तो उस पर क्या जो है करना चाहिए जिससे कि एयर क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो पाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है टाइम टू टाइम जब एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही थी तो उस समय कई जगह पे पानी के बौछारे भी कराए गए थे, और कई जगह पर सुबह सुबह जो है पानी जगह जगह रोड पर जो है गिराया गया था। तो उससे थोड़ा सा स्मोक, जो भी स्मॉग वाला सिचुएशन था वो थोड़ा कम हो जाता था। इवन या फिर अगर बारिश ठंडी में हो जाती है जबकि स्मॉग या सिचुएशन हो, तो आप देखेंगे कि वो जो स्मॉग होता है वो सेटल डाउन कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी एयर क्वालिटी होती है वो उसके वजह से ही खराब होता है। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? या तो पानी की बौछार से किया जा सकता है, या फिर अभी स्मॉग टावर लगा दिया गया है, उससे भी अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं उसके। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कुड बी इंक्लूडेड in this particular part by explaining the global air quality guideline of the WHO. All right. Now, the another question I discuss about the vulnerability of India to earthquake-related hazards. Give examples including salient features of major disasters caused by earthquake in different parts of India during the last 3 decades. अब इसमें बताना है कि इंडिया में earthquake-related hazards जो है इसकी कितनी ज़्यादा vulnerability है। अब बिकॉज इंडिया ऑलरेडी जो है एक टेक्टोनिक प्लेट ऑलरेडी पूरा टेक्टोनिक प्लेट ही है, और दूसरे टेक्टोनिक प्लेट में जाके ये कन्वर्ज होता है, तो इसके लिए ये हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। इसकी वजह से जो ट्रेमर्स यहाँ फील होते हैं उसमें जो अर्थक्वेक प्रोन ऑलरेडी है, तो इसलिए वल्नरेबल तो काफ़ी होता है। अब साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब गुजरात में जो है काफ़ी डिजास्टर सिचुएशन हो गया था, लातूर में डिजास्टर सिचुएशन हो गया था, दिल्ली में ऑलरेडी टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है अर्थक्वेक ट्रेमर्स फील होते हैं, लखनऊ में काफ़ी नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर जो है अर्थक्वेक ट्रेमर्स काफ़ी फील हुए थे। तो ये सारी एग्जांपल आप पुट आउट करके और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पुट आउट करके यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस आंसर, एंड दैट इज ऑल्सो शुड बी डन इन 150 वर्ड्स। डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels. Emerging technologies, अब इसमें सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग के सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा राइज हो गए हैं वो है बिटकॉइन। अब इसके बारे में क्योंकि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है और इवन इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि स्मगल्ड मनी कुड बी कन्वर्टेड इनटू बिटकॉइंस एंड देन दीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अदर कंट्री, बिकॉज इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक हाई होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तुरंत गिर भी जाते हैं। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ वेरी ग्रेट वेरी
problematic for governments as far as money laundering is concerned. ठीक है. अब 10th क्वेश्चन है, कीपिंग व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट द सोफिस्टिकेटेड अटैक्स. अब इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताना है, लेकिन ये कहना है कि इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स. रिसेंटली क्या हुआ था कि कई सारे रैंसमवेयर इंडस्ट्रीज के जो वेबसाइट्स थे उस पर छोड़ दिए गए थे, और वो रैंसमवेयर डिमांड कर रहे थे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप पे कीजिए तभी हम आपके पूरे डेटाबेस को छोड़ेंगे. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर छोटा सा पुट आउट कर सकते हैं, रैंसमवेयर के बारे में बता सकते हैं. और उसके बाद आप लेटर ऑन ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, से फॉर एग्जांपल आरबीआई की ही साइट है या फिर एनपीसीआई की साइट है, उस पे अगर कभी रैंसमवेयर जैसी चीजें आ जाती हैं या फिर कोई ऐसा बल्क वायरस अटैक कर जाता है, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम दैट विल बी फेस्ड बाय कॉमन सिटीजंस, क्योंकि उनका जो है सारा डेटाबेस तो वहीं पर है. अगर वो ब्लॉक हो जाता है देन द इकोनॉमी विल बी इन ट्रबल. ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चंस आ गए 150 वर्ड्स के, पहले थे ये 250 वर्ड्स के हो गए, तो दिस आर 15 मार्क्स क्वेश्चंस. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप रिकवरी. अब मैंने बताया कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के समय पर तो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, या फिर क्या कह सकते हैं वो रिकवरी की ओर तो बिल्कुल भी नहीं था. डाउनग्रेड हो गया था पूरा का पूरा जो ग्रोथ है वो. तो इसलिए अभी ये क्वेश्चन है कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, तो आपको ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी क्या इसकी ओर बढ़ रहा है. गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 2020 की अगर बात करें, 20 स्टार्टिंग में अराउंड फरवरी मार्च, वो उस समय से पूरा का पूरा लॉकडाउन ही लगा हुआ था, जिससे कि रेलवे जो हमारा बहुत बड़ा पार्ट है रेलवेज, उससे जो है बहुत ज़्यादा इनकम होती है, वही पूरा बंद था. साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जितनी भी टूरिज्म है या फिर जो भी सर्विसेज सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज थे वो सारे बंद थे, जिससे कि इनकम हमारा काफ़ी ज़्यादा होता था. तो वो पूरा शटडाउन होने की वजह से जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली डाउनग्रेड हो गई. और अभी जब 2020 में लास्ट मंथ्स में जब थोड़ा सा ढिलाई हुई, थोड़ा लूज किया गया लॉकडाउन को, तब जाके वहां से फिर से हमें इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलता है. तो ये ओवरऑल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन के समय पे सारी चीजें बंद होने की वजह से, इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, सर्विसेज सेक्टर बंद होने की वजह से कैसे इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हुआ था. और ये राइज पे कब हो जाता है, जब ऐसे सारी सर्विसेज जैसे कि रेलवे भी कुछ हद तक जो है शुरू कर दी गई और बाकी सारी इंडस्ट्री भी शुरू कर दी गई, तब जो है ये राइज की ओर दिखने लगा. ठीक है, तो आप इसमें अच्छा खासा पोर्शन बना सकते हैं, बिकॉज ये जो है काफी करंट है. आप जो है करंटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर आप टाइम टू टाइम इन सारी चीजों का एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट आउट द आंसर इन दी 250 वर्ड वेरी कंफर्टेबली. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस. अब इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है. अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल विस्टा प्लान है, इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे ही है, या फिर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, या फिर अहमदाबाद दिल्ली का प्रोजेक्ट है. तो ये सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रही है. और ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उससे सबसे जो बड़ी बात होती है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चाहे वो छोटे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो. और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टर्न व्हाट डज इट गिव, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट होता है दैट कुड बी ए डेब्ट ऑन द गवर्नमेंट और द पार्टी हु इज इन्वॉल्विंग इन इट. लेकिन ये जो डेब्ट क्रिएट होता है, जब ये प्लान पूरा रेडी हो जाता है तो उस पे टैक्सेस या उस पे जो है टॉल्स लगाने के बाद जो स्पेसिफिक रेवेन्यू क्रिएट होता है दैट डेफिनेटली एक तो डेब्ट खत्म करता है, दूसरे में इकोनॉमी को भी और ज्यादा बूस्ट करता है. ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया. तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था इसमें क्या किया गया था कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, इनको सब्सिडाइज्ड ग्रेन दिया जाएगा. ठीक है, ये सब्सिडाइज्ड ग्रेन दिया जाएगा 75% रूरल
और 50% अर्बन पीपल को। ये इस एक्ट के थ्रू बताया जा रहा था, और इसका जो भी मैकेनिज्म होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा शेयर करेगी स्टेट्स के साथ। ठीक है, ये सारे मैकेनिज्म बताए गए हैं। आप ओवरऑल इसके बारे में बता के एंड देयर आफ्टर यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट हाउ 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट, और कैसे हंगर और मैलन्यूट्रिशन विल बी सफाइस देयर। ठीक है, question 14 was, what are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? Present challenges before crop diversification. अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब है कि एक लैंड में अगर केवल राइस ही उगाया जाए, राइस ही होती है या केवल वीट ही होती है, यू मे नॉट बी हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग आउट ऑफ राइस। ठीक है, ज्यादा अर्निंग इससे नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यूज करना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर अगर राइस होता है तो इसको कुछ न्यूट्रिशियस बना के और भी कोई कैश क्रॉप जैसी चीजें यहाँ पर उगाए जा सके जहां पर फिजिबिलिटी हो पाए। तो इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और उसको भी टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। देन देयर आफ्टर हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो अब जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये सारी चीजें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फेयर इनफ चांसेस ऑफ पुटिंग ऑल दीज थिंग्स एंड पुटिंग इट इन द 250 वर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, now what are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poor sections of the society? Applied biotechnology, अब इसके लिए आप नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको हेल्प ले सकते हैं कि नीम कोटेड जो यूरिया है उसको डेवलप कर रहे हैं, और इसको जब फार्मर्स को देते हैं तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि फार्मर्स की प्रोडक्शन अच्छी होंगी तो उनकी अर्निंग अच्छी होगी, एंड इफ द अर्निंग इज गोइंग टू बी गुड, द पूरा सेक्शंस आर गोइंग टू गेट बेटर थिंग्स टू लिव फॉर। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 16, Nobel Peace Prize in Physics of 2014 was jointly awarded to Akasaki Amano Nakamura for invention of blue LEDs. अब ये जो इनको जो फिजिक्स का अवार्ड मिला था वो एलईडी डेवलप करने के लिए मिला था। ये जो है काउंटर एक प्रकार से डेवलपमेंट था, क्योंकि ये जो है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि आंखों पे ज़्यादा असर नहीं करता और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता आंखों के लिए। तो दैट वाज द इम्पैक्ट दैट वाज डेवलप्ड बाय एलईडी। और इसके साथ ही साथ और भी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि एलईडी, हाउ एलईडी इज़ वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू द आई ओनली। ठीक है, अब उसके अलावा और भी एनवायरमेंटल भी कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं दैट यू कैन पुट देयर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस द पार्टीज टू द UNFCCC। व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो आपने सुना होगा कि आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जब इस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने कहा था कि बाई 2075 जो है नेट जीरो एमिशन हम बिल्कुल भी जीरो पे ले आएंगे। ठीक है, और उनका ये भी कहना था कि बाई 2030 हम पूरा जो भी इस्तेमाल करेंगे वो सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, जो भी हमारी डेवलपमेंट होगी, और सारी जो एनर्जी यूज करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ठीक है, ये जो है कहना था नरेंद्र मोदी का 26 सेशन में। और ये जो नेट जीरो एमिशन है इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेट जीरो एमिशन कहने का मतलब है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एक कंट्री प्रोड्यूस करती है उसको पूरी तरह से खत्म भी कर देगी उस टाइम पीरियड में। तो ये है नेट जीरो एमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस एमिशन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ग्रीन हाउस एमिशन तो होगा लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म करने का मैकेनिज्म भी तब तक डेवलप हो जाएगा। दैट इज दी ओवरऑल नेट जीरो एमिशन। ठीक है, नाउ दिस इज दी पार्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट। Question 18 is describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the national landslide risk management strategy. Landslides के बारे में GS1 में भी पूछा गया है, और इसमें ये पूछा गया था कि जो लैंडस्लाइड होते हैं जो वेस्टर्न घाट में और हिमालय में वो किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि कॉजेज और इफेक्ट, उस वहां पर भी हिमालय में क्या कॉज है, वेस्टर्न घाट में क्या कॉज है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो क्वाइट सिमिलर यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड के लिए जो है क्या सिचुएशंस हो जाते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है या ईस्टर्न घाट है, वहां पर जो फॉरेस्ट होती है वो गर्मी में जो है ड्राई अप हो जाती है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो वहां पे जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वो सिल्ट कर जाता है, वो स्लाइड कर जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड क्रिएट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है।
ओवरऑल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन इजीली बी डिस्कस इन 250 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉजेज और उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड जो है अकर किया था, जिससे कि जो आसपास के क्षेत्र थे वो काफी प्रभावित हो गए थे, ठीक है। इसकी वजह से ही ये करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस कहा जा सकता है। दिस इज द ज्योग्राफी पार्ट। अब क्वेश्चन 19 है, analyze the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to take to be taken to combat these threats. Multidimensional challenges. अब मैंने जो GS3 का वीडियो तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बताया था कि कैसे बाहर से हम बाहर की जो कंट्रीज होती है वहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें या तो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा या फिर कोई इवन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं होते, एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा है और उसके वहां से कुछ स्पेसिफिक पैसों की जरूरत अगर पड़ती है तो उसको अगर चैनलाइज करके भारत में पहुंचा देता है, देन दोज आर द ग्रुप्स दैट कुड बी कॉल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स, बिकॉज वो जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताना है कि कैसे मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस जो भी एक्सटर्नल स्टेट के द्वारा होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा होता है, वो कैसे हम जो है उसको फेस कर सकते हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। और इसके बाद मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। अब इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या जो है मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जैसे कि 2015 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, इसका बहुत बड़ा पार्ट था कि जो बाहर से पैसे आते हैं उनका जो डिनोमिनेशन था वो तो 500 या 1000 में ही होता होगा, तो इसको जब इसको सस्पेंड जब कर दिया जाएगा तो बाहर से जो पैसे आते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और जब वो पैसे बंद हो जाएंगे तो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल मेजर्स थे उसको यहाँ पुट आउट कर सकते हैं, एंड you will definitely be achieving the 250 words here, ठीक है। Analyze the complexity and intensity of terrorism, it causes linkages and obnoxious nexus, also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism। अब टेररिज्म क्या है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को बताना है, तो ओवरऑल टेररिज्म को आपको डिफाइन करते हुए आप ये बता सकते हैं कि जो भी टेरर एक्टिविटी क्रिएट की जाती है मासेस के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म, क्योंकि जब ये मासेस के अगेंस्ट होता है वो भी व्हेन अ हेटेड फील्ड एक्टिविटी इज टेकन अप अगेंस्ट द मासेस, दैट पर्टिकुलर एक्ट वुड बी कॉल्ड एज टेररिज्म। और इसके जो लिंकेजेस हैं या ऑब्नोक्शियस नेक्सस हैं, इसके कॉजेज भी बताने हैं। तो कॉजेज आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक हो गया था तो उसके बाद से इसको काफी सीरियसली जो है अडॉप्ट किया गया था कि हाँ, जो ऐसे कई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि अपने ग्रुपिंग्स बनाकर और वो जगह जगह पर अलग टेरर फैलाने के पूरा स्ट्रेटेजी बना रखे हैं, तो उसको जो है आप कॉजेज में बता सकते हैं कि उसके क्या कॉजेज रहे हैं। क्योंकि कई बार अफगानिस्तान या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहां पर बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी और ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेल्थ, जो अवेलेबिलिटी नहीं होती उसके कारण भी टेरर जो है एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि उसमें फिर बाहर के जो देश होते हैं जो कि दूसरे देशों को और डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो पैसा वहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो दोज आर ऑल्सो कॉजेज एंड इट कुड बी ऑल्सो लिंक्ड, ठीक है। जैसे कि सीरिया है, तो सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करता है, वेयर रशिया सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड वेयर सऊदी अरेबिया सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। ऑल द थ्री ग्रुप्स आर मिलिटेंट ग्रुप्स। अब इन मिलिटेंट ग्रुप्स को ये डायरेक्ट यहाँ पे मनी देते हैं, यहाँ ये पैसे देते हैं, यहाँ ये पैसे देते हैं, तो ओवरऑल देयर आर लिंकेजेस टू दी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप उसको जो है प्रेजेंट करके एंड यू कैन अचीव 250 वर्ड्स limit and definitely that would be fetching you good marks here, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें काफी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है या फिर ट्विस्टेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, आपके पास एम्पल कंटेंट होगा इनको लिखने के लिए। हाँ, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा दैट विल मैटर हियर, तो इसलिए आपको अच्छा खासा कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो आपने अगर डायग्राम्स अगर कुछ यूज किया है, कुछ अगर प्रेजेंटेशन में आपने कोई स्टेटमेंट्स या कोट्स ऐसा यूज किया है, देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि जो हमने मेंस 120 प्लस डिस्कशंस किया था उसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, जो माइक्रो इरिगेशन का क्वेश्चन है वो, और एक और सिंपल क्वेश्चन है, तो उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे देख के उसका जो ओवरऑल आंसर है उसको भी वहां से देख सकते हैं।
बाकी विल बी पुटिंग आउट द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल बी कमिंग अप विद द GS4 एनालिसिस टू। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।